हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो बहुत दिनों से मैं अस्वस्थ चल रहा था, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज 4 जो आपका था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। उसमें जो भी निबंध और ट्रांसलेशन के प्रश्न थे उसका एक मॉडल सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग अगर बात कर रहे हैं टेस्ट 4 की, तो जिन लोगों ने भी टेस्ट दिया होगा उन्हें पता होगा। तो उसमें पहला प्रश्न था आपका, पहला का पार्ट ए, राइट एन एसे इन अबाउट 500 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या टॉपिक थे आपके? पहला टॉपिक था आपका डिजिटल फ्रॉड, दूसरा टॉपिक था आपका डिक्लाइन ऑफ मोरल वैल्यूज इन मॉडर्न सोसाइटी, तीसरा टॉपिक था आपका एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया, चौथा टॉपिक था आपका द रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। तो इनमें से आपको किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करना था और उस पर 500 वर्ड्स में इंग्लिश में एसे लिखना था। मैं आप लोगों के लिए चारों टॉपिक्स पे एक मॉडल एसे लेके आया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। पहला टॉपिक था आपका डिजिटल फ्रॉड। तो इसका इंट्रोडक्शन से पहले हमने कोट क्या यूज किया है? ट्रस्ट टेक्स इयर्स टू बिल्ड, सेकंड्स टू ब्रेक एंड फॉरएवर टू रिपेयर। इस कोट के साथ हमने एसे को स्टार्ट किया है। आगे हमने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? दिस सेइंग होल्ड्स ट्रू इन द डिजिटल वर्ल्ड वेयर फ्रॉडस्टर्स यूज डिसेप्शन टू स्टील मनी, डेटा एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन. Digital fraud is becoming more common as people rely heavily on the internet for banking, shopping, and communication. It refers to the misuse of technology to cheat individuals or businesses, often for financial gain. As technology advances, scammers continue to develop new ways to deceive people, making it important to stay informed and cautious. Next paragraph में, one of the most common types of digital fraud is phishing. This happens when scammers send fake emails, messages, or links that appear to be from trusted sources like banks or companies. These messages trick people into providing personal details such as passwords, credit card numbers, or banking information. Once the scammers get this data, they use it to steal money or commit identity theft. Many people fall for phishing scams because the messages look real, making it difficult to tell the difference between a fake and a genuine request. Next paragraph. Another type of digital fraud is online shopping scams. Many people prefer to shop online because it is convenient, but fraudsters take advantage of this by creating fake websites that look like well-known stores. They offer products at very low prices to attract buyers, but once the payment is made, the products never arrive. In some cases, these fake websites steal customers' payment information, leading to financial losses. It is always advised to check the website's authenticity before making any online purchases. Next paragraph. Financial fraud is also common in the digital space. Many criminals hack into banking systems, steal credit card information, or create fake investment schemes to trick people into sending them money. Some fraudsters send messages claiming that the person has won a lottery or a lucky draw, asking them to pay a small fee to claim their prize. Many people, especially those who are not familiar with such scams, end up losing their money. Investment fraud is another serious issue where people are promised huge profits if they invest in certain schemes. These turn out to be scams and people lose their savings. Next paragraph. Social media has also become a place where digital fraud takes place. Scammers create fake profiles, pretend to be someone else, and gain people's trust. They use emotional stories to ask for money or personal details. Some even use stolen photos to create fake identities and trick users into sharing private information. This type of fraud can lead to both financial and emotional damage. Next paragraph. Preventing digital fraud requires awareness and caution. People should never share their personal or financial information with unknown sources. It is important to check the authenticity of websites, emails, and messages before responding. Using strong passwords and enabling security features like two-factor authentication can also help protect online accounts. Banks and companies regularly warn people about fraud and it is important to follow their advice. इसके बाद हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? As technology advances, fraudsters will continue to find new ways to deceive people. However, with proper knowledge and careful online behavior, individuals can protect themselves from falling victim to digital fraud and ensure their safety in digital world. तो ये था आपका पहला टॉपिक जिसपे हमने 500 वर्ड्स में ऐसे देख लिया। दूसरा टॉपिक आपका था डिक्लाइन ऑफ मोरल वैल्यूज इन मॉडर्न सोसाइटी। इसको हमने किस कोट के साथ स्टार्ट किया है? द ट्रू मेजर ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी फाउंड इन हाउ इट ट्रीट्स इट्स मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे? दिस कोट बाय महात्मा गांधी हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मोरल वैल्यूज
in shaping a just and compassionate world. However, in today's modern society, there is noticeable decline in moral values. With changing lifestyles, increasing materialism, and growing individualism, people often prioritize personal success over ethical principles. This shift has led to a society where honesty, respect, and kindness are often overlooked in favor of selfish interests. Next paragraph. One of the main reasons for the decline of moral values is the influence of technology and social media. While these platforms have connected people across the world, they have also encouraged a culture of instant gratification and self promotion. Many individuals focus on gaining followers, likes, and attention rather than building meaningful relationships based on trust and respect. The rise of fake news, online bullying, and cybercrime further reflects how ethical values are often ignored in the digital age. People find it easier to spread hatred and misinformation without thinking about the consequences of their actions. Next paragraph. Another major factor is the changing structure of families and communities. In the past, moral values were passed down from one generation to the next through close family ties and strong community bonds. Parents, teachers, and elders played a crucial role in teaching children the difference between right and wrong. However, in modern times, with busy lifestyles and less family interactions, many young people grow up without a strong moral foundation. The focus has shifted from collective well being to individual achievements, leading to a decline in empathy and social responsibility. Next paragraph. Education, which should play a key role in shaping character, has also become more focused on academic success rather than ethical development. Schools and colleges emphasize competition, rankings, and career goals, often neglecting the importance of teaching moral values. Students are under pressure to perform well in exams and secure high paying jobs, sometimes at the cost of honesty and integrity. Cheating, corruption, and dishonesty have become common practices because people believe that success is more important than ethics. Next paragraph. Materialism and consumerism have further contributed to the erosion of moral values. The modern world promotes the idea that happiness comes from wealth, luxury, and possessions. People often measure success based on how much money they earn or what brands they wear, rather than on qualities like kindness, compassion, or humility. This mindset encourages greed, selfishness, and dishonesty, as many individuals are willing to compromise their values to achieve financial success. Next paragraph. Despite these challenges, there is still hope for restoring moral values in society. Families should prioritize teaching children the importance of honesty, respect, and empathy. Schools should include moral education as part of their curriculum, and individuals must take responsibility for their actions. Acts of kindness, integrity, and social responsibility should be encouraged and celebrated. अब आते हैं conclusion पे. A society without moral values cannot thrive in the long run. While progress and modernization are necessary, they should not come at the cost of ethics and humanity. Only by embracing moral values can we create a world that is fair, just and compassionate for future generations. तो इस तरह हमने 500 वर्ड्स में दूसरे टॉपिक पे भी इसे कंप्लीट कर लिया. अब आपका तीसरा टॉपिक था एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया. इसको हमने कैसे स्टार्ट किया है किस कोट के साथ. एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड. इसके बाद हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे. दिस कोट बाय नेल्सन मंडेला highlights the importance of education in shaping a nation's future. In India, education has always been a key factor in social and economic progress. However, the system has faced many challenges, including outdated teaching methods, lack of practical learning, and unequal access to quality education. To address these issues, several reforms have been introduced to improve the education system and make it more effective, inclusive, and modern. Next paragraph. One of the most significant reforms in recent years is the National Education Policy (NEP) 2020. This policy aims to transform the Indian education system by focusing on holistic learning, flexibility, and skill development. It introduces a new school structure of 5 plus 3 plus 3 plus 4, replacing the old 10 plus 2 system. This change ensures that children receive proper foundational learning in their early years, which is crucial for their overall development. The policy also emphasizes vocational training, coding, and critical thinking skills, making education more relevant to real world needs. Next paragraph. Another major reform is the shift towards digital learning. The government has launched various online platforms such as Diksha and Swayam to provide free educational content to students across the country. The rise of online education has made learning more accessible, especially in remote areas where quality teachers and schools are limited.
However, challenges such as the digital divide, lack of internet access, and affordability of devices still need to be addressed to ensure equal learning opportunities for all students. Next paragraph. Higher education has also seen significant changes. The NEP 2020 promotes multidisciplinary education, allowing students to choose subjects based on their interest rather than being restricted to rigid streams like science, commerce, or arts. The introduction of multiple entry and exit options in degree courses gives students more flexibility to complete their education at their own pace. Additionally, efforts are being made to improve the quality of higher education institutions by encouraging research, innovation, and collaboration with global universities. Next paragraph. Examination and assessment patterns are also being reformed. The traditional rote learning system where students memorize information without understanding concepts is being replaced with competency based learning. The focus is now on developing problem solving skills, creativity, and analytical thinking. Boards like CBSE are introducing open book exams, continuous assessments, and project based learning to reduce stress and make education more engaging. Next paragraph. Despite these positive reforms, challenges remain. Many government schools still lack basic facilities such as clean drinking water, proper classrooms, and trained teachers. The gap between rural and urban education continues to exist, with students in villages facing difficulties in accessing quality education. Teacher training and development also need more attention to ensure that educators are well equipped to handle modern teaching methods. अब आते हैं कंक्लूजन पे. Education reforms in India are a step in the right direction, but their success depends on proper implementation, funding, and public awareness. A well educated population is essential for the progress of any nation. By focusing on inclusive, practical, and skill based education, India can create a brighter future for its youth and strengthen its position in the global economy. तो इस तरह हमने 500 वर्ड्स में थर्ड टॉपिक पे भी ऐसे हमने कंप्लीट कर लिया है. अब आपका फोर्थ टॉपिक था द रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग. तो इसको हमने कैसे स्टार्ट किया है, किस कोट के साथ? द यूथ ऑफ ए नेशन आर द ट्रस्टीज ऑफ पोस्टरिटी. इस कोट के साथ हमने स्टार्ट किया है. आगे हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे दिस कोट बाय बेंजामिन डिसराली highlights the crucial role young people play in shaping the future of a country. The progress and development of a nation depend largely on its youth, who bring energy, creativity, and new ideas. A nation with a strong and responsible young population can achieve great heights in economic growth, social development, and innovation. However, to make the most of their potential, young people must be guided, educated, and provided with opportunities to contribute to nation building. Next paragraph. One of the most important ways in which youth contribute to nation building is through education and skill development. A well educated and skilled workforce is essential for economic growth. Young people who acquire knowledge in science, technology, business, and other fields can drive innovation and create job opportunities. They can develop new industries, start businesses, and help the country compete on a global level. Governments and educational institutions must ensure that youth receive quality education and training to prepare them for these responsibilities. Next paragraph. Youth also play a significant role in bringing social change. They have the power to challenge outdated customs, promote equality, and work towards a more just society. Throughout history, young people have led movements against social evils such as discrimination, corruption, and injustice. Their fresh perspectives and enthusiasm make them effective in raising awareness and advocating for positive changes. By participating in volunteer work, community service, and social initiatives, young individuals can help build a stronger and more united society. Next paragraph. Another key area where youth contribute to nation building is politics and governance. In a democracy, young voters have the power to elect leaders who will shape the nation's future. When youth actively participate in political discussions, vote wisely, and engage in policy making, they ensure that their voices are heard. Many young leaders today are forward to bring new ideas and transparency into governance. Encouraging youth participation in politics can lead to dynamic leadership and better decision making for the nation's progress. Next paragraph. Technology and innovation are also areas where the youth can make a significant impact. The modern world is driven by advancements in technology, and young minds are at the forefront of these developments. From creating software applications to solving environmental problems, young innovators have the ability to bring transformative changes. Startups led by young entrepreneurs are providing solutions in healthcare, education, and business.
contributing to economic growth and improving the quality of life for many people. Next paragraph. Despite their potential, many young people face challenges such as unemployment, lack of opportunities, and negative influences like drug abuse and crime. It is important for governments, families, and society to support them by providing education, mentorship, and career opportunities. Encouraging sports, arts, and extracurricular activities can also help in shaping a well-rounded and responsible generation. अब आते हैं कंक्लूजन पे. The youth are the backbone of any nation. Their ideas, energy, and passion can lead to remarkable progress if directed in the right way. By taking responsibility and working towards national development, they can build a stronger, more prosperous, and harmonious society for future generations. तो इस तरह से हमने 500 वर्ड्स में इस एसे को भी कंप्लीट कर लिया. तो हमने इंग्लिश के जो 4 एसे के टॉपिक थे उस पर हमने देख लिया कि एक मॉडल एसे कैसे लिख सकते हैं उन सारे टॉपिक्स पे. अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट बी. निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए. पहला आपका टॉपिक था पर्यावरणीय असंतुलन और प्राकृतिक आपदाएं. दूसरा टॉपिक था आपका युवाओं में नशे की बढ़ती लत. तीसरा टॉपिक था आपका संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता. चौथा टॉपिक था आपका भारत में खेलों का भविष्य. इसमें से आपको एक विषय सेलेक्ट करके उसमें आपको 500 शब्दों में हिंदी में निबंध लिखना था. यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए चारों टॉपिक्स पे एक मॉडल निबंध लेके आया हूँ. तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके. तो पहला आपका टॉपिक था पर्यावरणीय असंतुलन और प्राकृतिक आपदाएं. तो इसकी हमने शुरुआत कैसे की है, इस कोट के साथ हमने शुरुआत की है इसकी. प्रकृति से छेड़छाड़ का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है. आगे हम लोग भूमिका में लिखेंगे. यह कथन हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना हमारे लिए कितना आवश्यक है. लेकिन आधुनिक समय में विकास की अंधी दौड़ और मानवीय लापरवाही के कारण पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ता जा रहा है. इसका सीधा प्रभाव प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखने को मिलता है. बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात और ग्लोबल वार्मिंग जैसी आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. यदि समय रहते पर्यावरण को बचाने के प्रयास नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थिति और भी भयावह हो सकती है. अगला पैराग्राफ. पर्यावरणीय असंतुलन का मुख्य कारण मनुष्य द्वारा प्रकृति का अत्यधिक दोहन है. वनों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण, जल संसाधनों का दुरुपयोग और जैव विविधता का विनाश पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है. जंगलों के काटने से न केवल ऑक्सीजन की कमी हो रही है बल्कि अनेक जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहा है. इसके अलावा औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण वायु, जल और मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या गंभीर होती जा रही है. अगला पैराग्राफ. इस पर्यावरणीय असंतुलन का सबसे बड़ा प्रभाव प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आता है. जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश के पैटर्न बदल रहे हैं, जिससे कभी अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ आती है तो कभी सूखा पड़ जाता है. ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और तटीय इलाकों में चक्रवात और सुनामी जैसी आपदाएं बढ़ रही हैं. भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट भी पृथ्वी की असंतुलित गतिविधियों का परिणाम हो सकते हैं. अगला पैराग्राफ. इन आपदाओं के कारण मनुष्य और पर्यावरण दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. बाढ़ और सूखे से कृषि प्रभावित होती है, जिससे खाद्य संकट पैदा हो सकता है. चक्रवात और भूकंप से हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो जाते हैं. प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक नुकसान भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि सड़कों, पुलों, घरों और अन्य संरचनाओं को फिर से बनाने में बहुत धन खर्च होता है. अगला पैराग्राफ. हालांकि यदि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए सही कदम उठाएं तो इन आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है. सबसे पहले हमें वनों की कटाई रोकनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए. जल और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए औद्योगिक कचरे का सही प्रबंधन आवश्यक है. हरित ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम किया जा सके. लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी बहुत जरूरी है ताकि वे अपनी दैनिक गतिविधियों में प्रकृति का ध्यान रखें. अब आते हैं निष्कर्ष पे. पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना केवल सरकार का नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है. यदि हम अभी से सतर्क नहीं हुए तो भविष्य में हमें और अधिक भयावह प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है. प्रकृति और मानव का सह अस्तित्व ही इस दुनिया के संतुलित विकास की कुंजी है. इसलिए हमें आज ही अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास शुरू करने होंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समृद्ध पृथ्वी मिल सके. तो इस तरह 500 शब्दों में हमने पहले टॉपिक पे निबंध कंप्लीट कर लिया है. अब आपका दूसरा टॉपिक था युवाओं में नशे की बढ़ती लत. तो इसमें हमने कौन सा कोट यूज किया है, नशा नाश की जड़ है. इसके आगे हम लोग भूमिका में लिखेंगे. यह कहावत आज के समय में पूरी तरह सही सिद्ध हो रही है. युवाओं में नशे की बढ़ती लत एक गंभीर समस्या बनती जा रही है जो उनके स्वास्थ्य, करियर
और पारिवारिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। धूम्रपान, शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन युवाओं के बीच तेजी से बढ़ रहा है, जिससे न केवल उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है, बल्कि समाज भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यदि इस समस्या पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई, तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। अगला पैराग्राफ, युवाओं में नशे की लत के बढ़ने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण मानसिक तनाव और दबाव है। आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में युवा पढ़ाई, करियर और निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई बार वे अवसाद, चिंता और तनाव से राहत पाने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। इसके अलावा बुरी संगत और दोस्तों के दबाव में भी कई युवा नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। शुरुआत में इसे एक मजाक या शौक के रूप में लिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे यह एक गंभीर लत बन जाती है, जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला पैराग्राफ, मीडिया और इंटरनेट का प्रभाव भी युवाओं को नशे की ओर धकेलने में अहम भूमिका निभा रहा है। फिल्मों, वेब सीरीज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नशे को ग्लैमराइज किया जाता है, जिससे युवा इसे एक स्टाइल स्टेटमेंट मानने लगते हैं। विज्ञापनों और प्रचार के जरिए शराब और सिगरेट को आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा बना दिया गया है, जिससे युवा आसानी से इसके चक्कर में फंस जाते हैं। अगला पैराग्राफ, नशे की लत के दुष्परिणाम बहुत भयानक होते हैं। यह न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बर्बाद करता है, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी पूरी तरह प्रभावित करता है। नशे के कारण युवाओं में याददाश्त की कमजोरी, निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट और आक्रामक व्यवहार देखा जाता है। इससे उनकी पढ़ाई और करियर प्रभावित होता है और वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। नशे के आदी लोग अपराध की दुनिया में भी कदम रख सकते हैं, जिससे समाज में असुरक्षा और अशांति बढ़ती है। अगला पैराग्राफ, इस गंभीर समस्या का समाधान निकालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले माता पिता को अपने बच्चों के प्रति सतर्क रहना होगा और उनके व्यवहार में आने वाले बदलावों पर ध्यान देना होगा। परिवार का प्यार और सही मार्गदर्शन युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद कर सकता है। स्कूलों और कॉलेजों में नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि युवा इसके खतरों को समझ सकें। सरकार को भी कड़े कानून बनाकर नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी पर रोक लगानी चाहिए। अब आते हैं निष्कर्ष पे। युवाओं को यह समझना होगा कि नशा किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समस्याओं की जड़ है। उन्हें अपने सपनों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनानी चाहिए। खेल, संगीत, योग और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेकर वे नशे की बुरी लत से बच सकते हैं। अगर आज के युवा आत्मसंयम और जागरूकता दिखाएं, तो वे न केवल अपना भविष्य सुधार सकते हैं, बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। तो इस तरह से 500 शब्दों में आपका दूसरे टॉपिक पे भी निबंध समाप्त होता है। आपका तीसरा टॉपिक था संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता। तो इसमें हमने कौन सा कोट यूज किया है? धर्मनिरपेक्षता किसी धर्म का विरोध नहीं, बल्कि सभी धर्मों का समान सम्मान है। इसके साथ हमने भूमिका को स्टार्ट करते हैं। आगे लिखते हैं भूमिका में, यह विचार भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता की मूल भावना को दर्शाता है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस विविधता को बनाए रखने और सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है। यह न केवल धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा और सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा। अगला पैराग्राफ, भारतीय संविधान के प्रास्ताविक भाग में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि सरकार किसी भी धर्म को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करेगी और सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और उसे मानने की स्वतंत्रता होगी। संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, जो सभी नागरिकों को अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार आचरण करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का हक प्रदान करता है, जब तक कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के खिलाफ न हो। अगला पैराग्राफ, अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों को अपनी गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 27 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए, कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने के नियमों को निर्धारित करता है। इन प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है और राज्य धर्म के मामलों में तटस्थ रहता है। अगला पैराग्राफ, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की एक विशेषता यह है कि यह न केवल राज्य को धर्म से अलग रखती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाए। भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया गया है, जिसमें राज्य धार्मिक मामलों में पूरी तरह निष्क्रिय नहीं रहता, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप करता रहता है। उदाहरण के लिए सरकार ने समाज सुधार के उद्देश्य से सती प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया है। अगला पैराग्राफ, हालांकि भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेकर कई चुनौतियां भी हैं। कभी-कभी राजनीतिक दल धर्म को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है।
धार्मिक असहिष्णुता और दंगों जैसी घटनाएं संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना को कमजोर कर सकती हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का पालन किया जाए और समाज में भाईचारा बनाए रखा जाए। अब आते हैं निष्कर्ष पे। संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता केवल एक कानूनी सिद्धांत नहीं, बल्कि भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। यदि सभी नागरिक धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन करें और धार्मिक सहिष्णुता को अपनाएं, तो भारत एक मजबूत और समृद्ध समाज के रूप में आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से 500 शब्दों में हमने तीसरे टॉपिक पे भी निबंध कंप्लीट कर लिया है। आपका चौथा टॉपिक था भारत में खेलों का भविष्य। इसको हमने कैसे स्टार्ट किया है? पहले तो हम लोग कोट लिखेंगे, खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक देश की पहचान और गौरव का प्रतीक होते हैं। इसके आगे हम लोग भूमिका में लिखेंगे, यह बात भारत जैसे विशाल देश के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है, जहां क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती और अन्य खेलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भारत में खेलों का भविष्य उज्जवल दिख रहा है, लेकिन इसे और अधिक विकसित करने के लिए सही नीतियों, संसाधनों और अवसरों की आवश्यकता है। सरकार, खेल संगठनों और समाज के सहयोग से भारत एक वैश्विक खेल शक्ति बन सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, भारत में क्रिकेट को सबसे अधिक लोकप्रियता मिली है और यह खेल देश में एक भावनात्मक जुड़ाव रखता है। आईपीएल जैसी लीगों ने क्रिकेट को व्यावसायिक रूप से मजबूत किया है और नए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद की है। हालांकि अन्य खेलों में भी भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। ओलंपिक और विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी और भारोत्तोलन जैसे खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कई पदक जीते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि देश में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगला पैराग्राफ, भारत में खेलों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार और विभिन्न खेल संगठनों ने कई कदम उठाए हैं। खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) जैसी योजनाएं युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने में मदद कर रही हैं। इसके अलावा प्राइवेट लीग और कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप से खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे अपने खेल पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ, हालांकि भारत में खेलों के विकास में अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की कमी, उचित प्रशिक्षण की अनुपलब्धता, कोचिंग की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत और पारंपरिक मानसिकता जैसी समस्याएं खेलों के विकास में बाधा डालती हैं। कई माता-पिता अब भी खेलों को करियर के रूप में स्वीकार नहीं करते, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। इसके अलावा कुछ खेलों में राजनीति और भ्रष्टाचार के कारण युवा खिलाड़ियों को अवसर मिलने में परेशानी होती है। आगे, भारत में खेलों का भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब इन चुनौतियों का समाधान किया जाए। सरकार को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए, ताकि हर बच्चा अपनी प्रतिभा को निखार सके। स्कूलों और कॉलेजों में खेलों को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जिससे बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़े। इसके साथ ही खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण तकनीकों को अपनाना जरूरी है। अब आते हैं निष्कर्ष पे। आज भारत धीरे धीरे एक खेल महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। यदि खिलाड़ियों को सही मार्गदर्शन, संसाधन और अवसर दिए जाए, तो भारत आने वाले वर्षों में ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शीर्ष देशों में शामिल हो सकता है। खेल न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि वे राष्ट्र की एकता और गौरव का प्रतीक भी होते हैं। इसलिए हमें खेलों को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं, बल्कि एक आवश्यक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में देखना चाहिए और इसके विकास में योगदान देना चाहिए। तो इस तरह से 500 शब्दों में चौथे टॉपिक पे भी आपका निबंध समाप्त होता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, सेकंड का पार्ट ए। निम्नलिखित अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपका टेस्ट 4 में ये आपका अनुच्छेद था इंग्लिश का, इंग्लिश पैसेज, जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना था। तो हम लोग एक एक सेंटेंस को एक एक स्लाइड पर लेते हैं और उसका देखते हैं कि सही हिंदी अनुवाद और उचित हिंदी अनुवाद कैसे कर सकते हैं। तो पहला आपका सेंटेंस था, द ब्यूटी ऑफ नेचर हैज इंस्पायर्ड पोएट्स एंड आर्टिस्ट फॉर सेंचुरीज। तो ब्यूटी मतलब क्या होता है? सुंदरता। नेचर मतलब आपका हो जाएगा प्रकृति। इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित करना होता है। पोएट मतलब हो जाता है कवि। आर्टिस्ट मतलब हो जाता है कलाकार। और सेंचुरीज मतलब सदियों से। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा आपका? प्रकृति की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ नेचर, सदियों से मतलब 4 सेंचुरीज, कवियों और कलाकारों मतलब पोएट्स एंड आर्टिस्ट को प्रेरित करती आई है, इंस्पायर करती आई है। अगला सेंटेंस था, माउंटेन्स स्टैंड टॉल, देयर पीक्स टचिंग द स्काई, व्हाइल रिवर्स कार्व देयर वे थ्रू वैलीज। तो माउंटेन्स का क्या हो जाएगा आपका? पहाड़। स्टैंड टॉल मतलब खड़े रहते हैं। देयर पीक्स, पीक्स मतलब आपका हो जाएगा उनकी चोटियां। टचिंग मतलब छूना। स्काई मतलब आपका हो जाता है आकाश। रिवर्स नदी। कार्व मतलब किसी के बीच से रास्ता बनाना। देयर वे थ्रू वैलीज मतलब आपका हो जाता है घाटियां। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? पहाड़ अपनी ऊंचाइयों पर अडिग खड़े रहते हैं। देखिए इसका हमने भावानुवाद किया है। माउंटेन्स स्टैंड टॉल,
मतलब पहाड़ अपनी ऊंचाइयों पर अडिग खड़े रहते हैं। देयर पीक टचिंग द स्काई, उनकी चोटियां आकाश को छूती हैं। while rivers carve their way through valleys, जबकि नदियां घाटियों के बीच अपना रास्ता बनाती चली जाती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, the changing seasons bring new colors to the landscape, each with its own charm. changing seasons मतलब बदलते हुए मौसम, bring new colors मतलब नए नए रंग लाते हैं, to the landscape, landscape को हम लोग क्या लिखेंगे, landscape का यहाँ संदर्भ धरती से है, पृथ्वी से है, each with its own charm, charm का मतलब क्या होता है, चार्म को हम लोग यहाँ खूबसूरती के तौर पर ले सकते हैं। तो इसका पूरा अनुवाद हमने क्या किया है, देखिए इस तरह के जो आपके पैसेज है, इस तरह के जो सेंटेंसेस है, उसका आपको समझ के भावानुवाद ही करना होगा। तो देखिए हमने क्या इसका अनुवाद किया है, बदलते हुए मौसम धरती को नए रंगों से भर देते हैं। द चेंजिंग सीजन्स ब्रिंग न्यू कलर्स टू द लैंडस्केप, ईच विथ इट्स ओन चार्म, और हर मौसम की अपनी अलग खूबसूरती होती है। नेक्स्ट सेंटेंस, स्प्रिंग फिल्स द एयर विद द फ्रेग्रेंस ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स, while autumn paints the trees in shades of gold. तो स्प्रिंग का क्या हो जाएगा आपका, स्प्रिंग में सीजन होता है बसंत, फिल द एयर, एयर मतलब आपका हो जाए हवा, विद द फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मतलब होता है खुशबू, ब्लूमिंग फ्लावर्स, ब्लूमिंग फ्लावर्स मतलब क्या हो जाएगा आपका, खिले हुए फूल, while autumn, autumn क्या होता है आपका, पतझड़, पेंट्स, पेंट्स मतलब रंगना, ट्रीज मतलब पेड़, शेड्स ऑफ गोल्ड मतलब सुनहरे रंग में। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, बसंत की हवा में खिले हुए फूलों की खुशबू बस जाती है, स्प्रिंग फिल्स द एयर विद द फ्रेग्रेंस ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स, जबकि पतझड़ पेड़ों को सुनहरी रंगत में रंग देता है, व्हाइल ऑटम पेंट्स द ट्रीज इन शेड्स ऑफ गोल्ड, सुनहरी रंगत, शेड्स ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, इवन द क्वाइट ऑफ विंटर विथ इट्स ब्लैंकेट ऑफ स्नो हैज ए सर्टेन मैजिक, क्वाइट ऑफ विंटर क्या हो जाएगा, सर्दी की खामोशी, ब्लैंकेट ऑफ स्नो मतलब बर्फ की चादर, हैज ए सर्टेन मैजिक मतलब वो कुछ एक अद्भुत तरह का जादू बिखेरती है। तो पूरा अनुवाद इसका क्या हो जाएगा, जब बर्फ की चादर सब कुछ ढक लेती है, तब सर्दी की खामोशी भी अपने आप में एक अद्भुत जादू बिखेरती है। इसका हमने भावानुवाद किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स एट डॉन एंड द रस्टलिंग ऑफ लीव्स इन द विंड क्रिएट अ पीसफुल मेलोडी। तो सॉन्ग ऑफ बर्ड्स मतलब पक्षियों का जो चहचहाना होता है, जो पक्षियों का गाना होता है, डॉन मतलब क्या होता है आपका, भोर यानी सुबह के समय, एंड द रस्लिंग ऑफ लीव्स मतलब पत्तियों की जो चरचराहट होती है उसके बारे में बात की गई है, इन द विंड मतलब हवा में, क्रिएट अ पीसफुल मेलोडी, पीसफुल मेलोडी को हम लोग लिख सकते हैं सुकून भरी धुन। तो पूरा अनुवाद क्या हो गया, सुबह के समय पक्षियों का मधुर गान, द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स एट द डॉन, और हवा में सरसराते पत्तों की आवाज, एंड द रस्टलिंग ऑफ लीव्स इन द विंड, मिलकर एक सुकून भरी धुन बना देते हैं, क्रिएट अ पीसफुल मेलोडी। नेक्स्ट सेंटेंस, नेचर प्रोवाइड्स नॉट ओनली ब्यूटी बट आल्सो वैल्यूएबल लेसन्स। नेचर का आपका हो गया प्रकृति, ब्यूटी मतलब सुंदरता, वैल्यूएबल लेसन्स मतलब जीवन पाठ, अनमोल जीवन पाठ। तो इसका पूरा अनुवाद हो गया, प्रकृति केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि अनमोल जीवन पाठ भी सिखाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट टीचेस पेशेंस थ्रू द स्लो ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड रेजिलियंस थ्रू द सर्वाइवल ऑफ क्रीचर्स इन हार्श कंडीशंस। टीचेस मतलब सिखाना, पेशेंस मतलब क्या हो जाएगा आपका धैर्य, थ्रू द स्लो ग्रोथ मतलब धीमी वृद्धि, ट्रीज मतलब आपका हो गया पेड़, रेजिलियंस मतलब क्या होता है, रेजिलियंस मतलब होता है जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, थ्रू द सर्वाइवल ऑफ क्रीचर्स मतलब जो जीवों का संघर्ष होता है, हार्श कंडीशंस मतलब कठिन परिस्थितियों में। तो पूरा अनुवाद क्या हो गया आपका, पेड़ों की धीमी वृद्धि के माध्यम से यह हमें धैर्य सिखाती है, यह कौन, प्रकृति, और कठिन परिस्थितियों में जीवों के संघर्ष से साहस और जिजीविषा का पाठ पढ़ाती है। तो रेजिलियंस मतलब हमने यहाँ पे साहस और जिजीविषा दोनों लिख दिया, तो इसका अनुवाद हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी एलिमेंट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड इज कनेक्टेड फॉर्मिंग ए डेलिकेट बैलेंस। एवरी एलिमेंट मतलब हर तत्व, हर एक तत्व, नेचुरल वर्ल्ड मतलब प्राकृतिक संसार, कनेक्टेड मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, फॉर्मिंग अ डेलिकेट बैलेंस सूक्ष्म संतुलन या नाजुक संतुलन बोल सकते हैं इसको। तो पूरा अनुवाद क्या हो गया इसका, प्राकृतिक संसार का हर तत्व आपस में जुड़ा होता है और मिलकर एक सूक्ष्म या नाजुक संतुलन बनाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स ऑन नेचर्स रिसोर्सेज येट मेनी फेल टू अप्रिशिएट इट्स इंपॉर्टेंस। ह्यूमन लाइफ मतलब मानव जीवन, डिपेंड्स मतलब निर्भर है, और नेचर्स रिसोर्सेज मतलब प्रकृति के संसाधनों पर, येट मेनी फेल मतलब कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, टू अप्रिशिएट इट्स इंपॉर्टेंस
मतलब इसकी महत्ता को समझने में वो असफल रहते हैं। तो इसका पूरा अनुवाद क्या हो गया, मानव जीवन प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर करता है, फिर भी कई लोग इसकी महत्ता को समझने में असफल रहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन, रिवर्स ऑफर वाटर एंड द सोइल नर्चर्स क्रॉप्स दैट सस्टेन लाइफ। फॉरेस्ट का आपका हो गया वन या जंगल, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन मतलब हमें ऑक्सीजन देता है, रिवर्स मतलब नदियां, ऑफर वाटर मतलब हमें जल प्रदान करती है, एंड द सोइल, सोइल मतलब मिट्टी, नर्चर्स क्रॉप्स मतलब नर्चर्स मतलब होता है पोषण देना, क्रॉप्स को मतलब फसलों को, दैट सस्टेन लाइफ जो कि जीवन का आधार बनाती है। तो पूरा अनुवाद इसका हो गया, वन हमें ऑक्सीजन देते हैं, नदियां जल प्रदान करती हैं और मिट्टी फसलों को पोषण देकर जीवन का आधार बनाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, however pollution and deforestation threatens these precious gifts। तो however का क्या हो गया आपका हालांकि, pollution का हो गया प्रदूषण, deforestation का हो गया निर्वनीकरण, threatens this, threatens मतलब खतरा बन रहे हैं, these precious gifts मतलब इन बहुमूल्य उपहारों के लिए खतरा बन रहे हैं। तो पूरा अनुवाद आपका हो गया, हालांकि प्रदूषण और निर्वनीकरण इन बहुमूल्य उपहारों के लिए खतरा बन रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इज नॉट जस्ट अ चॉइस बट ए रिस्पांसिबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। प्रोटेक्टिंग मतलब रक्षा करना, एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण की, नॉट जस्ट ए चॉइस मतलब यह एक विकल्प नहीं है, बट ए रिस्पांसिबिलिटी एक जिम्मेदारी है, फॉर फ्यूचर जनरेशंस मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए। पूरा अनुवाद क्या हो गया, पर्यावरण की रक्षा करना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जिम्मेदारी है। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ पीपल डू नॉट एक्ट नाउ द ब्यूटी ऑफ नेचर में बिकम नथिंग मोर देन अ मेमोरी। तो इफ पीपल डू नॉट एक्ट नाउ मतलब यदि लोग अभी भी सतर्क नहीं हुए, द ब्यूटी ऑफ नेचर मतलब प्रकृति की सुंदरता, में बिकम नथिंग मोर देन अ मेमोरी मतलब प्रकृति की सुंदरता केवल एक स्मृति बनकर रह सकती है। तो पूरा अनुवाद इसका क्या हो गया, यदि लोग अभी भी सतर्क नहीं हुए तो प्रकृति की सुंदरता केवल एक स्मृति बनकर रह सकती है। तो ये था आपका इंग्लिश पैसेज और उसका हिंदी ट्रांसलेशन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट पे, जिसमें एक हिंदी अनुच्छेद दिया हुआ था जिसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था। तो एक एक वाक्य को हम लोग एक एक स्लाइड में लेते हैं और उसका देखते हैं किस तरह से इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग कर सकते हैं। तो पहला आपका वाक्य था, परिश्रम सफलता की कुंजी है, जीवन में जो व्यक्ति निरंतर मेहनत करता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। परिश्रम का यहाँ पे क्या अनुवाद किया हमने, हार्ड वर्क, सफलता का क्या हो जाएगा, सक्सेस, कुंजी का हो जाएगा की, जीवन मतलब लाइफ, निरंतर मेहनत मतलब जो कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य का क्या हो जाएगा आपका गोल, प्राप्त करना का क्या होता है अचीव। तो पूरा अनुवाद क्या हो गया इसका, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, परिश्रम सफलता की कुंजी है, द पर्सन हु कंसिस्टेंटली पुट इन एफर्ट्स, जो जीवन में जो व्यक्ति निरंतर मेहनत करता है, इज द वन हु कैन अचीव देयर गोल्स इन लाइफ, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगला वाक्य, बिना परिश्रम के किसी भी कार्य में सफलता मिलना असंभव है। परिश्रम मतलब हार्ड वर्क, तो इसका अनुवाद हो जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव सक्सेस इन एनी टास्क विदाउट हार्ड वर्क। बिना परिश्रम के किसी भी कार्य में सफलता मिलना असंभव है। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तियों ने कठिन परिश्रम के बल पर ही अपनी पहचान बनाई है। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री बियर्स विटनेस दैट ग्रेट इंडिविजुअल्स मतलब महान व्यक्तियों ने हैव मेड देयर मार्क मतलब अपनी पहचान बनाई है थ्रू शेयर हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम के बल पर ही। अगला वाक्य है, मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी भी असफलता से नहीं घबराता बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ता है। मेहनत करने वाला व्यक्ति मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन कभी भी असफलता से नहीं घबराता, नेवर फियर्स फेल्यूर, या हार्ड वर्किंग पर्सन नेवर फियर्स फेल्यूर बल्कि इंस्टेड उससे सीखकर आगे बढ़ता है, दे लर्न फ्रॉम इट एंड मूव फॉरवर्ड। अगला वाक्य है, परिश्रम से आत्मविश्वास बढ़ता है और मनुष्य का व्यक्तित्व निखरता है। परिश्रम मतलब हार्डवर्क, आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस, मनुष्य का व्यक्तित्व मतलब ए पर्सन्स पर्सनालिटी निखरता है, एनहांसेस। तो पूरा अनुवाद क्या हो गया, हार्ड वर्क बूस्ट्स कॉन्फिडेंस, परिश्रम से आत्मविश्वास बढ़ता है और मनुष्य का व्यक्तित्व निखरता है, एंड एनहांसेस अ पर्सन्स पर्सनालिटी। अगला वाक्य है, यह केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी योगदान देता है। व्यक्तिगत विकास का क्या हो गया आपका पर्सनल ग्रोथ, सीमित मतलब लिमिटेड, समाज और राष्ट्र मतलब सोसाइटी एंड द नेशन, उन्नति मतलब प्रोग्रेस, योगदान देना मतलब कंट्रीब्यूट्स। तो पूरा इसका अनुवाद क्या हो गया, दिस इज नॉट लिमिटेड टू पर्सनल ग्रोथ बट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड द नेशन। अगला वाक्य है आपका, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है क्योंकि यह सफलता की राह में बाधा उत्पन्न करता है। आलस्य मतलब लेजीनेस, मनुष्य मतलब ए पर्सन, सबसे बड़ा शत्रु ग्रेटेस्ट एनिमी, सफलता की राह में बाधा उत्पन्न करता है, क्रिएट ऑब्स्टेकल ऑन द पाथ टू सक्सेस।
पूरा अनुवाद हो गया इसका, लेजीनेस इज अ पर्सन्स ग्रेटेस्ट एनिमी, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, बिकॉज क्योंकि इट क्रिएट्स ऑब्स्टेकल्स ऑन द पाथ टू सक्सेस, क्योंकि यह सफलता की राह में बाधा उत्पन्न करता है। ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधा, पाथ टू सक्सेस मतलब सफलता की राह में। अगला वाक्य है, परिश्रम से ही नई खोजें होती हैं और दुनिया प्रगति की ओर बढ़ती है। परिश्रम मतलब हार्डवर्क, नई खोजें मतलब न्यू डिस्कवरीज, प्रगति मतलब प्रोग्रेस। तो पूरा अनुवाद इसका क्या हो गया, हार्ड वर्क लीड्स टू न्यू डिस्कवरीज, परिश्रम से ही नई खोजें होती हैं और दुनिया प्रगति की ओर आगे बढ़ती है, एंड ड्राइव्स द वर्ल्ड टुवर्ड्स प्रोग्रेस। अगला वाक्य, छात्र जीवन में परिश्रम का विशेष महत्व होता है क्योंकि यही भविष्य की नींव तैयार करता है। छात्र जीवन मतलब स्टूडेंट लाइफ, परिश्रम हार्डवर्क, विशेष महत्व मतलब स्पेशल इंपॉर्टेंस, भविष्य मतलब फ्यूचर, नींव मतलब हो जाएगा फाउंडेशन। तो पूरा अनुवाद इसका क्या हो गया, हार्ड वर्क होल्ड्स स्पेशल इंपॉर्टेंस इन स्टूडेंट्स लाइफ एज इट लेज द फाउंडेशन, मतलब नींव तैयार करना, फॉर द फ्यूचर, भविष्य की नींव तैयार करना। अगला वाक्य है आपका, मेहनत से मिली सफलता का आनंद अधिक होता है और व्यक्ति में संतोष का भाव उत्पन्न होता है। मेहनत मतलब हार्डवर्क, मिली सफलता मतलब सक्सेस, आनंद मतलब हो जाएगा जॉय, संतोष, संतोष का हो जाता है सेटिस्फैक्शन। तो पूरा अनुवाद क्या हो जाएगा, द सक्सेस अचीव्ड थ्रू हार्ड वर्क ब्रिंग्स ग्रेटर जॉय, मेहनत से मिली सफलता का आनंद अधिक होता है और व्यक्ति में संतोष का भाव उत्पन्न होता है। एंड इंस्टिल्स, इंस्टिल्स मतलब उत्पन्न होना, अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब संतोष का भाव, इन पर्सन, व्यक्ति में संतोष का भाव उत्पन्न होता है। अगला वाक्य, जो व्यक्ति परिश्रम से भागता है उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अ पर्सन हु अवॉइड्स हार्ड वर्क मतलब जो परिश्रम से भागता है, फेसेस मेनी डिफिकल्टीज इन लाइफ, उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला वाक्य है, केवल भाग्य के भरोसे बैठना व्यर्थ है क्योंकि सफलता का मूल मंत्र मेहनत ही है। तो भाग्य का आपका क्या हो जाएगा, लक, व्यर्थ मतलब यूजलेस, उसके भरोसे बैठना मतलब रिलाइंग ओनली ऑन लक, सफलता का मूल मंत्र मतलब मंत्र ऑफ, ट्रू मंत्र ऑफ सक्सेस, मेहनत यानी हार्ड वर्क। तो पूरा अनुवाद क्या हो जाएगा, रिलाइंग ओनली ऑन लक इज यूजलेस मतलब व्यर्थ है, बिकॉज द ट्रू मंत्र ऑफ सक्सेस मतलब सफलता का मूल मंत्र इज हार्ड वर्क यानी मेहनत। अगला वाक्य है, परिश्रम का फल देर से ही सही लेकिन अवश्य मिलता है। द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, परिश्रम का फल, में कम लेट मतलब देर से ही सही, बट दे आर सर्टेन, लेकिन अवश्य मिलता है। देयरफॉर, इसलिए हमें सदैव कठिन परिश्रम करने की आदत डालनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। तो ये था आपका हिंदी का अनुच्छेद और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इस तरह हमारा जो टेस्ट 4 था उसमें जितने भी प्रश्न थे उसका हमने मॉडल सॉल्यूशन देख लिया है। आपका टेस्ट 5 और टेस्ट 6 भी कंडक्ट हो चुका है और उसका भी सॉल्यूशन लेके मैं जल्दी ही आऊंगा। तो तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। 29 मार्च को आपका पेपर 2 का एग्जाम होने वाला है और मैंने उसके लिए पर्याप्त प्रैक्टिस सेशंस उपलब्ध करा दिए हैं अपने YouTube चैनल पे, जहां पे आप ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी एसे वगैरह आए थे उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैंने इंपॉर्टेंट एसेज और इंपॉर्टेंट तरह के जितने भी तरह के आपके ट्रांसलेशन आ सकते हैं उसका भी मैंने प्रैक्टिस करा दिया है और वो सारे वीडियोस मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। आगे भी अभी भी 10 दिन का समय बचा है और मैं जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेशन का वीडियो आपके लिए ला सकूं मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।